Hi guys, welcome back to my channel. So if you're new to my channel, I'm Tanmaya and I make videos related to beauty, health, lifestyle, fitness and uh, many more things. Sorry for the interruption. So today I'm actually nervous, excited, confident. I don't know what's the exact word, but yeah, I'm very nervous and even excited because the await is over. The most awaited video is here. Yes, it's my weight loss journey, guys. If you know, I uploaded a short few days back where I was telling that I'm coming up with my weight loss journey real soon. So yeah, here I am. So this is gonna be a little long video. I hope you guys will enjoy. Please watch it till last. I'm also gonna give you the tips and tricks that I followed during my journey. So yeah, let's begin. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. And yes, you can grab a cup of green tea, black coffee or tea or some healthy snacks. So yeah, and I'll also tell you like what all I was eating and what all I'm eating right now. Don't worry, I'm also uploading a lot of my recipes on my Insta handle, so just go and check out my Insta. I'll link it in the description below, and I'll like put the pictures of mine over on the screen here, or else I will also show you like on my other phone. I'll also give you few like pics in between also, so it's helpful for you. So let's get started. Don't forget to like and subscribe, and now let's begin. Okay, so I'm still on a journey to lose basically right now I'm losing the extra body fat. Extra body fat by mean I lost a lot of body fat, a lot. Like I'll show you and you will recognize, yes, I have lost a lot of body fat, but yeah, I still have a little bit fat on my arms, my belly area, like the lower belly, which is a stubborn belly fat. So I have to reduce that. 2-3 parts of my body are the main, but as I told before also, that spot reduction is a myth, guys. You can't spot reduct from any part of your body. आपको ओवरऑल फैट लॉस ही करना पड़ेगा. ये वीडियो मैं हिंदी में ही रखूँगी, ओके, सो डोंट वरी. आपको ओवरऑल फैट लॉस ही करना पड़ेगा. आपका कोई भी बॉडी पार्ट स्पॉट रिडक्शन नहीं कर सकता. आप सिर्फ आर्म्स का, सिर्फ बेली, सिर्फ फेस फैट नहीं कम कर सकते. वो एक सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है, तो प्लीज़ उसको ट्राई मत करना कि आप एक ही पर्टिकुलर, यू आर जस्ट डूइंग एब्स फॉर कंटिन्यूस ईयर्स एंड यू विल थिंक कि एब्स आपके आ जाएंगे, आपका बेली फैट चला जाएगा. नहीं होगा. बी इन अ कैलोरी डेफिसिट. सो आई एक्सप्लेन धीरे धीरे सब कुछ कैसे होता है, कैसे करना है. आपको उसके लिए कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा. यू हैव टू वर्कआउट फॉर योर होल बॉडी. डोंट जस्ट वर्कआउट एक बॉडी पार्ट का. सिर्फ एब्स मत करो, सिर्फ आर्म्स मत करो, सिर्फ आप थाइस के लिए स्क्वाट्स और लंजेस मत करो. कुछ नहीं होगा. स्पॉट रिडक्शन नहीं होती है. ये मैंने फेस किया है, इसलिए मैंने इससे स्टार्टिंग किया है. ओके, तो मैंने जब अपना जर्नी स्टार्ट किया था, इट वॉज around 4 years back, and I'm still it took me 4 years to come from 95 kgs to 67 kgs. Yes guys, I was 90, not even 95. At a point I actually went to 100 kgs, and the reason was thyroid. Yes, I was suffering from a major thyroid issue. I was having my thyroid medicines. Okay, so why it took me so much time to just cure my thyroid was I was not at all focusing on my diet. So I was like, I'm turning 16 this year. Yes, so 4 years back, you can say, around I was 10 or 11 or 12 years, I was just having my thyroid का medicine. तो what I used to do is कि my doctor used to say, like मेरा जो डॉक्टर थे वो मुझे बोलते थे कि avoid like चीनी, मीठा, cold drink, fried and everything. But I was like a stubborn kid in my childhood. तो उस टाइम पे I want cold drink with every meal. Either it's breakfast, it's lunch, it's dinner. इतना बड़ा वाला class, I had to drink of cold drink. So can you imagine how many empty calories I was taking in a day? Like 2 glasses worth of fixed. It was lunch and dinner, or lunch or evening snacks. में कभी भी 2 glasses were fixed. So I was taking a lot of empty calories, and like my thyroid, like the thyroid points got on increasing from 7, 8, like
फिर इट वॉज नॉर्मल से स्टार्ट हुआ था, बट इट वॉज 6 और 7 एंड मैंने मेडिकेशन लेनी स्टार्ट करी. इट वेंट 10, 11, 12, 13. एट अ पॉइंट इट एक्चुअली रीच्ड 17 और 18 बिकॉज आई वॉज टेकिंग द मेडिसिन. ओके, बट डाइट पे कोई कंट्रोल नहीं था. आई वॉज हैविंग रिफाइंड शुगर, रिफाइंड मैदा, एवरीथिंग. आई वॉज हैविंग छोला भटूरा, आई वॉज हैविंग चॉकलेट्स, चिप्स, everything. My whole day का my one day like breakfast, lunch and dinner, उसमें I used to like lunch में I'm having parathas. Okay, not one parathas, I was having 2 to 3 parathas. Okay, और उस टाइम पे क्या हुआ था, when I was taking my thyroid का medicine ना, मेरी भूख बढ़ गई थी. तो जैसे मैं पहले 2 रोटी खाती थी, तो आई स्टार्टेड हैविंग 3 रोटीज़ और 4 रोटीज़. आई यूज टू हैव 2 परांठाज, आई स्टार्टेड हैविंग प्लेन लाइक 3 to 4 परांठाज. सो दैट थिंग वॉज लाइक आई वॉज ओवर गोइंग ऑन माई कैलोरीज. तो चाइल्डहुड में तो किसी को कुछ होता नहीं. वॉट यू वॉन्ट चिप्स खाने हैं तो खाने हैं भाई, कोई रोक नहीं सकता. फिर in 2018, so yeah, in 2018 October में I tested positive for dengue. Okay, so I had dengue twice. ठीक है, वो सेकेंड टाइम मुझे हुआ था. एक बार मुझे पहले भी हुआ था बचपन में, तो वो मुझे सेकेंड टाइम हुआ था. तो उसमें what happened was for complete like 20 days or 1 month I was not able to have anything like solid. No roti, no chawal, no like doodh. I was not able to have doodh because whatever I used to have ना, जो भी मैं लेती थी, I used to vomit. तो वो मुझे digest नहीं हो रहा था. So my doctor kept me on a liquid diet for some time. He told my mom to give me only nariyal pani, Glucon-D and kiwi because these 3 things are very beneficial for your dengue also. They cures your dengue and my platelets were going down and down day by day. तो डॉक्टर ने कहा आप इसको ये सब दो, otherwise we have to admit her for at least 10 days in the hospital. So my mom used to rigorously give me like 4 to 5 nariyal panis. My doctor said to give me in a day. तो वो देती थी. She used to give me Glucon-D, kiwi twice a day. So that. So when I like recovering, I was not able to have anything. No roti, rice, dal, anything like proper solid तो मेरे अंदर जाता ही नहीं था. Not even I was not even able to have like khichdi also. So that became a really big problem for that time. But sooner and later when I got like platelets normal होने लगे, तो मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि now you have to my mom, now you have to give her something which is solid. मतलब कुछ तो solid देना है ना यार, because अगर ठीक है आपका जो डिजीज़ है वो ठीक हो रहा है, लेकिन योर बॉडी एनर्जी लेवल इज़ नॉट गुड, राइट. तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि इट्स ओके, वॉमिट करती है करे, बट एटलीस्ट in one whole day at least give her 1 roti. That time I lost a lot of weight, like a lot of weight. 2016 से 2018 तक मेरा कोई वेट कम नहीं हुआ था. जब मैंने थायराइड का मेडिकेशन ले थी सिर्फ बढ़ा था. एट दैट टाइम जब मुझे थायराइड हुआ था I was 90 kgs and I came to 85 kgs, around 85 kgs. तो उसके बाद I started having my normal खाना धीरे धीरे करके. in November, from my birthday actually, in November I started having थोड़ा थोड़ा. Then my doctor told me to have non-veg, eggs, chicken and everything. तो धीरे धीरे I started everything. Now came 2019. Okay, so 2019 in April हमारे घर में एक शादी थी. We had a marriage. So I was being a little थोड़ा ill थी मैं. मतलब डॉक्टर के पास हम जा रहे थे. तो शादी से एक दिन पहले आई हैड अ चेस्ट एक्सरे बिकॉज माई डॉक्टर टोल्ड मी टू लाइक मुझे को बहुत खांसी थी और मेरे को चेस्ट में पेन था. तो मेरे डॉक्टर ने मेरा एक्सरे करवाया. द डे वी हैड द मैरिज द रिपोर्ट्स केम एंड आई हैड अ वेरी मेजर इन्फेक्शन इन माई चेस्ट. सो माई डॉक्टर टोल्ड मी अगेन. हम उनके पास नेक्स्ट डे ऑन द डे ऑफ रिसेप्शन हम उनके पास अपना लेके गए एक्सरे वगैरह. उन्होंने चेक डेट और सब कुछ किया. तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना माई एल्डर ब्रदर, जो मेरे सबसे एल्डर ब्रदर हैं, वो मेरे को लेके गए थे. तो उन्होंने उनसे कहा कि आप इसको ग्लूकोज चढ़वाओ.
तो ही सेड इट्स ओके। तो फिर डॉक्टर ने कहा चलो एक काम करते हैं, मैं इसको एक टैबलेट देती हूँ, मे बी उससे इसको काफ़ी आराम बढ़ जाए। बट वो टैबलेट ऐसी थी, मैं टैबलेट लेती थी एंड 15 मिनट्स बाद आई यूज टू वॉमिट। तो वो टैबलेट का जो असर था वो मेरी बॉडी में हो ही नहीं पा रहा था, बिकॉज एज इट इज़ टैबलेट जो थी वो मुझे वॉमिट के थ्रू बाहर आ जाती थी। सो उधर मुझे स्टेरॉइड्स चढ़े मेरे को, क्योंकि आई हैव वेरी लाइक मेरी जो वेन्स है ना वो बहुत वीक हैं, तो मेरी वेन्स में मुझे कैनुला लगा था फॉर 7 to 8 days। मुझे सुबह शाम ग्लूकोज चढ़ा। मैं पिक्चर अपलोड करूँगी यहाँ पे साइड में, आप देख लेना बाद में। तो मुझे कैनुला लगा हुआ था। अब उसके बाद क्योंकि मुझे स्टेरॉइड्स लग रहे थे, अच्छा जो मुझे डेंगू हुआ था अक्टूबर में, तब मैं 85 पे आ गई थी फ्रॉम 90। फिर जब तक मुझे टाइफाइड हुआ था आई केम लाइक 85 kgs, ऑटोमेटिकली मेरा ड्रॉप हो गया 80 पे, आई वाज ऑन 80। फिर मुझे डॉक्टर ने लाइक स्टेरॉइड्स दिए थे। तो ऑब्वियसली गाइस जब आप स्टेरॉइड्स या कोई भी हैवी डोज ऑफ मेडिसिन एंटीबायोटिक्स लेते हो तो आपका वेट बढ़ता है। सो आई अगेन केम टू 85 kgs, लाइक आई वेंट बैक टू 85 kgs। एंड तब मुझे नहीं था दिमाग में कि मुझे वेट रिड्यूस करना है या मुझे पतला होना है या मुझे कुछ भी होना है, तो ये मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था। ये मैं आपको एक अपनी पिक्चर दिखाने जा रही हूँ अभी, आई फॉरगॉट एक्चुअली। ये पिक्चर है पूरे 3 साल पहले की, 27th of July 2018, हाँ 2018 की है, सॉरी। सो you can see this is how I used to look in 2018. Just look at the face and this is my belly fat, this is my face, you can see a major difference. तो ये 2018 की पिक्चर है, I was traveling, तो ये एयरपोर्ट की पिक्चर है। So सब कुछ हो गया and I like this is also 2018 picture. It's of March I think, focus camera, yeah. So this is how I used to look. Okay, so 2019 में मुझे सब कुछ हो गया, like I got my cannula and everything done, मेरा weight increase हो गया था। Again मेरी जो appetite थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, मैं कुछ खा नहीं पाती थी। I just used to love 2-3 things at that time, cold coffee, चाय और पेस्ट्रीज, केक्स, मीठा मुझे बहुत क्रेव होता था जब मुझे टाइफाइड ठीक हुआ था। तो जब मुझे टाइफाइड ठीक हुआ था उसके बाद मैंने कुछ रिड्यूस तो नहीं किया था, आई वॉज द सेम। लुक एट दिस पिक्चर, आई वॉज द सेम। तो मैं बिल्कुल सेम था, मेरा कोई कहीं से भी कोई भी % फैट का रिड्यूस नहीं हुआ था या कुछ भी नहीं हुआ था। तो उसके बाद फिर अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैं शादी कह रही थी ना, तो ये है वो पिक्चर शादी की। अगर मेरा फ़ोन फोकस कर रहा है तो कैन यू लुक एट माई फेस फैट, जस्ट कंपेयर इट, या। तो ये हुआ। उसके बाद ना 2019 में आई वॉज लाइक एग्ज़ाम्स वगैरह, बहुत मेरी स्टडीज़ जो थी मेनली बहुत डिस्टर्ब हुई थी, तो मैं उससे बहुत स्ट्रेस रहती थी। सो एज अ किड, एज नॉर्मल किड्स, आई स्टार्टेड डूइंग स्ट्रेस ईटिंग, द बिग इशू। स्ट्रेस ईटिंग में 2 पैकेट चिप्स खा जाना एंड चीनी, एवरीथिंग लाइक बाहर का मोमोज, चाउमीन, एवरीथिंग। 2019 में मैंने बहुत खाया गाइस, बहुत खाया है। 2020, okay, the beginning of 2020, January and February, that was the time I started feeling like I was I was getting insecure. वो टाइम ऐसा था कि मैं अपने फ्रेंड्स को देखती थी, या आई यूज टू सी गर्ल्स अराउंड मी एंड दे हैड दैट फ्लैट बेली एंड दैट स्लीक फेस एंड एवरीथिंग, एंड आई वाज लाइक मुझे भी चाहिए यार। सो 2020 में आई स्टार्टेड दिस। तो मैंने क्या किया 2019 में ही, इनफैक्ट नॉट 2020 ऑल्सो, 2019 में ही, आफ्टर ऑल माई इलनेस एंड एवरीथिंग, जब मुझे टाइफाइड क्योर हुआ, मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी डाइट में से हटाई थी गाइस, कम नहीं की थी। तो एक्चुअल में तो ये मैंने अपने डेंगू के टाइम पे ही कर दिया था 2018 में, लेकिन जब मैं दोबारा बीमार हुई थी ना, तो माई डॉक्टर यूज टू से प्लीज़ आप अभी खाओ, जो आपका मन करता है वो खाओ, बिकॉज राइट नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज मेरा हीमोग्लोबिन वॉज 9, कैन यू इमेजिन।
नॉर्मल हीमोग्लोबिन इज 12 और 16 के बीच में, माइन वॉज 9. तो माई डॉक्टर सेड इट्स ओके, यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, जूसेस, वेजिटेबल एंड फ्रूट जूसेस, सब कुछ लो आप. मीठा भी तब मुझे, क्योंकि चक्कर बहुत आते थे तब, शुगर लो रहती थी, तो मैं डॉक्टर टोल्ड मी कि अब भी कुछ नहीं, एटलीस्ट फॉर 2 months हैव एवरीथिंग. तो 2018 में जब मुझे डेंगू हुआ था ना, उसी टाइम पे मैंने कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने बिल्कुल छोड़ दी. सबसे पहले आता शुगर. शुगर का मैं इंटेक अपनी डाइट से बिल्कुल हटा दिया था. कोल्ड ड्रिंक्स मुझे मना हो चुकी थी, तो नो कोल्ड ड्रिंक्स, नो सॉफ्ट ड्रिंक्स. कैन यू इवन इमेजिन, ट्रुथफुली आई एम सेइंग, 2018 में जब मैंने कोक छोड़ी थी, एंड टुडे इट्स 2021, swear by I have not touched even a single sip of coke, because I'll tell you why. उस टाइम मैंने छोड़ी थी, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट उसके बाद धीरे धीरे व्हेन आई वॉज प्रोग्रेसिंग इन माई जर्नी ना, तब मेरे सामने से कोक रखी है. आई यूज टू से लाइक एनीवन इज ऑफरिंग मी कोक ले लें, मेरा जवाब क्या था, नहीं यार मुझे पसंद नहीं है, मुझे टेस्ट नहीं अच्छा लगता. तो ऐसे मैंने अपनी चीज़ों को कम किया था, हटाया था लिटरली. सो कोक मुझे आज भी कोई दे देना, अब तो सीरियसली मैं कोक का एक सिप भी लेती हूँ ना, तो मुझे इतना गंदा टेस्ट आता है. Second thing was refined wheat flour, मैदा. I stopped having chola bhaturas, chips, Maggies. I was a kid. I'll tell you guys my story on this thing also for Maggie. मैं वीक में 2 बार मैगी खाती थी, एक बारी में मैं 2 मैगी खाती थी, और उसके साथ आई यूज्ड टू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक. ठीक है, तो यू कैन इमेजिन हाउ मेनी एम्प्टी कैलोरीज आई वॉज हैविंग एट अ टाइम. तो वो मैंने बंद कर दी. सेम मैगी का भी है, तब से अभी तक मैंने मैगी भी नहीं खाई. मेरे घर में मैगी बनती है, मेरे भाई खाते हैं दोनों, मेरे पापा मम्मा सब खाते हैं, बट मुझे लाइक मम्मा कभी फोर्स भी करती है ना, आई जस्ट टेक इतू सा बाइट, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे कैसी भी मैगी नहीं पसंद मैगी. ठीक है. थर्ड थिंग वॉज फ्राइड पकौड़ाज, पूड़ीज एंड एवरीथिंग फ्राइड. बाहर का वो KFC फ्राइड चिकन होता था ना, वो बहुत पसंद था, अब नहीं पसंद ना, मैं खाती हूँ. ठीक है. Fourth thing was chocolates. I stopped having chocolates. I will not say कि मैंने तब से अब तक चॉकलेट नहीं खाई, नहीं, ऐसा नहीं है यार. इट्स देखो, you do crave for your favorite things. ठीक है. तो मैंने अब जब अपना लाइफ जो अपने आप को चेंज किया था ना, मैं अपनी डाइट नहीं चेंज की थी, अपना लाइफस्टाइल चेंज किया था कि इफ़ आई एम क्रेविंग, इफ़ आई वांट इट, देन आई विल हैव इट. मैं ऐसी नहीं हूँ कि मेरे सामने चॉकलेट पड़ी है और मैं अपने आप को मतलब बोलती रहूँ नहीं खानी, और या खाने के बाद कोसती नहीं. इफ़ आई हैव अ चॉकलेट इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई फील लाइक नहीं मुझे खानी है, इफ़ आई एम फीलिंग, आई विल टेक अ छोटा पीस, हैव इट, सैचेट माई क्रेविंग, एंड दैट्स इट. एंड दैट एक्चुअली गिव्स माई माइंड अ सिग्नल, ये पीस खा लिया, यू आर डन. आई डू फॉर आई ईट डार्क चॉकलेट. मुझे डार्क चॉकलेट जब बहुत पसंद है, एंड दे आर गुड. लाइक मैं डार्क चॉकलेट का भी जो पीस होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो आई टेक अ हाफ अ पीस. आई डोंट टेक 4-5 पीस इकट्ठे, वो नहीं करती हूँ मैं. स्वीट्स हो गई, स्वीट्स में भी आई डू कि इफ़ समवन इज़ गिविंग मी अ पीस ऑफ बर्फ़ी, इमेजिन इतना सा पीस है, तो मैं उसको हाफ का भी हाफ लूँगी. आई विल टेस्ट इट, टेस्ट आ गया, आई विल एन्जॉय इट इन माई माउथ धीरे धीरे करके, एंड दैट्स इट. That's how I took my journey. Acha, now 2020, as you all know, we got like COVID. तो COVID start हुआ, we had entire lockdown. Whole 2020 I think lockdown में निकला है. तो वो ना actually मेरे लिए golden opportunity थी. Golden opportunity क्यों थी, उसका एक reason है. मैंने COVID के टाइम पे लॉकडाउन में कुछ ऐसा मेजर तो था नहीं करने को. स्टार्टिंग में हमारी जो स्कूल्स थे वो भी बंद थे, सब कुछ था. तो मैंने क्या किया, मैंने ना 10 एक्सरसाइजेस गूगल से नॉर्मल, क्योंकि उस टाइम पे मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं था एक्सरसाइज क्या होता है क्या नहीं होता. गूगल से 10 एक्सरसाइजेस के स्क्रीनशॉट लिए. रोज़ सुबह आई यूज़ टू वेक अप बिफोर एवरीवन. माई फैमिली यूज़ टू वेक अप इन लाइक लॉकडाउन एंड एवरीथिंग पीरियड 10:30. आई यूज़ टू वेक अप एट 8. ओके, तो मैं 8 बजे उठती थी. आई केम लाइक मैं एक रूम में, अब सेपरेट रूम में जाती थी एक्सरसाइज करने के लिए. आई यूज़ टू स्विच ऑफ द फैन.
रात को ही व्हाट आई यूज टू डू ना, मैं रात को ही ना जब सोती थी ना तो मैं कभी भी वो खुले पजामा टी शर्ट्स नहीं पहन के सोती थी, बिकॉज अगर आप मेरे को ऐसा लगता था कि जब मैं वो पहन के सोती हूँ ना मुझे अगले दिन एक्सरसाइज, तो मैं अपना लेगिंग और टी शर्ट जो मुझे सोना चाहिए होता था मैं वही पहन के आई यूज टू वेयर दैट एंड स्लीप अर्ली मॉर्निंग इन वन अलार्म। आई यूज टू वेक अप, आई केम आउटसाइड, ठीक है, आई पानी पिया नॉर्मल, अपना वर्कआउट करती थी 1 घंटा, एंड मुझे नहीं फील होता था कि मुझे सुबह सुबह उठते पहले कुछ खाना है, मेरे दिमाग में बस पानी पीते पीते हुए भी चल रहा होता था एक्सरसाइज 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 एक्सरसाइज। 1 घंटा पूरा एक्सरसाइज किया एंड आई यूज टू स्वेट लाइक हेल हेल, ठीक है। 1 घंटा एक्सरसाइज किया और उसके बाद आई यूज टू डू फ्यू ऑफ द वर्क्स, आई यूज टू क्लीन दैट रूम, ठीक है, जो मेरा अपना रूम था, बिकॉज हम कोविड के टाइम पे भी एवरीवन ऑफ अस मोस्टली वी यूज टू स्लीप इन लाइक वी यूज 2 to 3 रूम्स, तो बाकी रूम्स, तो मेरा जो रूम था जिसमें जो मेरा पर्सनल रूम था उसको हम क्लीन करती थी मैं सब कुछ, ठीक है। तो उसके बाद व्हाट आई यूज टू डू, सब कुछ क्लीन किया, यूज टू मेक टी फॉर माई एंटायर फैमिली। तो येस गाइस, मैंने कोविड में एक चीज़ बहुत अच्छी और सीखी, मैंने पूरी कुकिंग सीख ली अपनी मॉम से लॉकडाउन के अंदर, हाउ टू मेक एवरीथिंग। देखो चाय, मैगी और कुछ सब्जियां, ये सब मुझे पहले से बनाना आता था, लाइक बहुत पहले से। आई यूज टू मेक चाय फॉर एवरीवन एंड व्हाट आई यूज टू डू फॉर मी वाज, मैं 3 या 4 जितना मुझे लगता था एग्स लेती थी, उसके साथ अगर कोई फ्रूट अवेलेबल हुआ तो फ्रूट लिया, नहीं हुआ तो मिल्क लिया, कोल्ड मिल्क, और उसके अंदर थोड़ी सी म्यूसली डाली, बिकॉज ऑब्वियसली म्यूसली में शुगर होती है। तो इफ़ आई एम टेकिंग हाफ अ कप ऑफ मिल्क आई जस्ट पुट 2 स्पून ऑफ म्यूसली, 3 to 4 egg whites only. Okay, if I'm taking 4 eggs I'll take 2 egg whites and 2 whole eggs, ठीक है, वो लिया एंड आई यूज टू डू अ प्रॉपर ब्रेकफास्ट, क्योंकि कोविड का टाइम ऐसा था हर किसी का रूटीन जो था वो ख़राब हो गया था। एंड आप मानोगे नहीं, कोविड के टाइम में मैंने अपना रूटीन बिल्ड किया था। यस, मैंने अपना सोना प्रॉपर एक्यूरेट टाइम पे किया, I used to wake up at the same time, I used to sleep at the same time, breakfast at a proper time, lunch at a proper time and dinner at a proper time and everything मेरा सब कुछ एकदम मेंटेन था, वर्कआउट वगैरह सब कुछ मैंने मेंटेन कर रखा था। मैं अपना ब्रेकफास्ट करती थी, देन उसके बाद क्योंकि हमारे घर में सब ब्रेकफास्ट लेट करते थे तो मैं तो अपना ब्रेकफास्ट पहले कर लेती थी। ब्रेकफास्ट किया, देन obviously I am a chai lover from a very long time, since my childhood I am a chai lover, तो मैं भी थोड़ी सी चाय लेती थी। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दी, 2018 में जब मैं आपको बता रही हूँ ना मैंने सब कुछ छोड़ा था अपना डेंगू के बाद, उसमें मैंने एक चीज़ चेंज और की थी। मुझे ना बहुत मीठी चाय पसंद थी पहले, मैंने चाय में चीनी डालना कम कर दिया था, और आज का दिन ऐसा आएगा इस लिटरली सच्ची में मुझे अपनी चाय में चीनी पसंद नहीं है। अगर कोई मुझे मीठी चाय दे दे तो ना मैं चाय नहीं पीती। मैं जब सुबह चाय भी बनाती हूँ ना तो मैं अपनी चाय पहले अलग से छान लेती हूँ और उसके बाद उसके अंदर चीनी, गुड़ भी नहीं मुझे पसंद, चीनी, गुड़, स्टीविया जो भी मेरे फैमिली को कंफर्टेबल जब लगता है वो मैं डाल देती हूँ, तो मैं नहीं लेती, ठीक है। उसके बाद मैं अपना नॉर्मली सब कुछ करती थी, लाइक 2020 में। अच्छा, तब क्या था, तब मेरा रात को चिकन, हमारे घर में ऑलमोस्ट रोज़ चिकन बनता था, तो तब मैं रात को चिकन भी खाना है, उसके साथ रोटी भी खानी, 10 बजे भी खाना है, कोई बात नहीं, 9 बजे भी खाना है, ठीक है, सब कुछ चल रहा था। 2021 स्टार्ट हुआ, तो 2020 में मैंने काफ़ी अच्छा खासा रिड्यूस कर लिया था। तो अगर आप देखोगे तो ये है मेरी 2020 की पिक्चर, ये है मेरे 2020 की पिक्चर, अगर दिख रही हो तो मैं थोड़ा पास ले जाती हूँ। ये मेरे 2020 की पिक्चर है गाइस। तो उसके बाद मैंने काफ़ी हद तक रिड्यूस किया, सब कुछ किया। 2020 में हम अपने न्यू हाउस में, जो ये अभी है, इसमें हम शिफ्ट हो गए थे मेरे बर्थडे के टाइम पे, दिवाली का टाइम था, सब कुछ एवरीथिंग वाज गोइंग ओके एंड फाइन। अच्छा, दिवाली हैज़ टू बी लाइक, घर वाले आर लाइक लिटरली होता है ना वो इमोशनल धमकी, मिठाइयाँ आती थी बहुत सारी। माई पेरेंट्स एंड माई ब्रदर यूज्ड टू लाइक, दिवाली है खा ले, कोई बात नहीं, इट्स ओके, एंड माई मम्मी वाज लाइक, मम्मी की नहीं सुनेंगे ना, तो ये सब बहुत चलता है गाइस, तो ये होता है, इट्स ओके। बट पता है क्या होता है,
अगर आपका एक माइंडसेट है ना, यू हैव टू बिल्ड अ नाइस लाइफस्टाइल, यू वांट टू लूज वेट, यू वांट टू बी फिट, बी हेल्दी। अगर आप अपने फैमिली में आपके पेरेंट्स हैं, सिस्टर्स, ब्रदर्स, कोई भी आपके, जो भी आपके घर में हैं, दादा दादी, जो भी लोग हैं, अगर आप उनको समझाओगे ना, आप बताओगे, दे विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड यू। मैं मानती हूँ कि आई हैव द बेस्ट सपोर्टिंग पेरेंट्स, both my mom, dad, and I have the best supporting brothers, both my brothers. They are, these four people are like so nice, like I can't even tell you. ये इतने, मतलब मैंने उनको सिर्फ एक बार बताया था एंड दे नो, यू नो व्हाट, जब से मैंने ये सब स्टार्ट किया ना, माई फैमिली इज़ लाइक दे आर कमिंग, दे लाइक वो लोग ना मेरे साथ सब कुछ। अब वो जैसे अगर मैं कोई चीज़ नहीं खाती, अगर मैंने कहा है कि मुझे ये चीज़ नहीं खानी है, तो दे आर ऑल्सो ट्राइंग, लाइक मुझे ये लगता है मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स और मेरे दोनों ब्रदर्स का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत चेंज हुआ है। बिकॉज मेरा फिक्स हो गया था एक ब्रेकफास्ट लंच डिनर का टाइम, तो एवरीवन नोज़ कि ये इसका टाइम है। सो एवरीवन, अगर मेरा डिनर टाइम 9 o'clock है, 9:30 है, तो मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ डिनर कर लेती है। दे आर नॉट लाइक कि हमें अभी नहीं करना, और मेरा भाई नहीं बोलते हमें नहीं खाना, मम्मा या पापा कोई नहीं बोलता कि हमें अभी नहीं खाना है या कुछ भी, ऐसा नहीं है। तो दे आर वेरी सपोर्टिव। सो अगर आप अपनी फैमिली को समझाओगे, बताओगे, सो एक बात सुन लो, पूरे वर्ल्ड में फैमिली से ज़्यादा कोई सपोर्टिव नहीं होता, स्पेशली योर पेरेंट्स। सो कीप दैट थिंग इन माइंड। अच्छा, अब चलते हैं हम अपने 2021 को, ठीक है। 2021 में आपको बताऊंगी। अच्छा, तो जनवरी, फरवरी, अप्रैल मैंने एक डाइटिशियन से डाइट ली, ठीक है। आई एम नॉट गोना नेम हर ओवर हियर बिकॉज आई डोंट वांट टू। मैंने डाइट ली। शी यूज्ड टू चार्ज 2000 रुपीज़ पर मंथ। आई टोल्ड माई पेरेंट्स, दे एग्रीड, दे said okay, we have no issues, we'll give you money। अच्छा, 2020 दिसंबर में मैंने जिम ज्वाइन किया था, ये मैं बताना भूल गई। नवंबर एंड में, सॉरी 23rd या 24th को, हाँ नवंबर एंड में मैंने जिम ज्वाइन किया था। तो मैं जिम जाना स्टार्ट कर दिया था मैंने, बिकॉज तब जिम्स खुल गए थे, कोविड काफ़ी वो हो गया था, लाइक जब लॉकडाउन अनलॉक शुरू हुआ था तो जिम्स खुल गए थे 2020 नवंबर एंड में। तो आई वॉज डूइंग माई जिम एंड एवरीथिंग। तो January end में I discovered this the dietitian I'm telling you on Instagram. Someone like suggested me on Instagram, so I thought why not, and मेरे को उनकी client diaries और client updates देख के were like wow, it's nice. I joined her. In the first 15 days I lost 2 kgs. अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ 2019 में मेरा वेट टाइफाइड के बाद करते कराते 75 पे आ चुका था, ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें तब बंद कर दी थी। 2019 में मेरा वेट 75 kg था। 2020 जब मैंने जिम ज्वाइन किया था 75 kg से, तब मेरा वेट था 70। हाँ, जब मैंने जिम ज्वाइन किया तब मेरा वेट गाइस 70 था। उनको ज्वाइन करके मेरा 2 kg रिड्यूस हुआ था जिम डाइटिशियन की। इन फर्स्ट 15 डेज ओनली आई रिड्यूस 2 kg। उसके बाद मैं वेट स्टक्ड एक पॉइंट पे 70 से आई केम 68 एंड 68 पे इट वाज स्टक्ड, लिटरली स्टक्ड, आई कैन टेल यू गाइस। तो मैंने उनकी डाइट की 3 months। आई फॉलोड हर डाइट बहुत अच्छे से, ठीक है। वो मुझे हर वीक का डाइट प्लान देती थी एंड मैं उसको फॉलो करती थी। उसमें माई डिनर का टाइम वॉज 7 एंड माई डिनर कंसिस्ट ऑफ ओनली फ्रूट्स। तो मैं ये बता रही हूँ, मेरे डिनर में सिर्फ पपाया या पाइनएप्पल होता था या मिल्क होता था हल्दी वाला, और कुछ नहीं होता था। तो 3 months के बाद जब मेरा ऐसे ही वन डे आई वाज सिटिंग विद माई मॉम, और मैंने अपनी मम्मा को बोला, यार मम्मा मेरा ना वेट ना स्टक हो गया है। मेरी मम्मा ने कहा कि ना वेट ना स्टक हो जाता है एक टाइम पे जाके, तो तू एक काम कर, तो अपनी मैम से बोल कि, क्योंकि मेरा नेक्स्ट पेमेंट ड्यू होने वाला था, तो अपनी मैम से बोल कि मैम मुझे 1 वीक या 10 days का ना लीव चाहिए, मुझे छुट्टी लेनी है, मुझे ब्रेक लेना है। तो मैंने अपनी मैम को बोल दिया, तो शी सेड ओके यू कैन टेक अ ब्रेक, इट्स ओके। तो माई मॉम सेड डू वन थिंग, स्टार्ट हैविंग योर नॉर्मल मील्स, ठीक है।
सुबह अपना नाश्ता कर, दिन में अपनी 2 रोटी सब्जी सब कुछ खा, सैलेड वैलेड, और रात को भी ट्राई हैविंग राइस सम डेज और हैव रोटी और एनीथिंग। अच्छा गाइस, मैंने ब्रेक लिया था 10 डेज़ का, लेकिन वो ब्रेक में मैंने जो घर का खाना, जो चीज़ उन्होंने मेरे उसमें घर के खाने जैसे डिनर हटा रखा था। ब्रेकफास्ट में शी यूज्ड टू गिव मी आइदर उपमा, आइदर ओट्स, पोहा और दलिया, 4 ऑप्शंस, या ओट्स दूध वाले, हाँ 4 ऑप्शंस थे। I was bored. My mom said, "Come on, have something that you like." ठीक है, अपना नॉर्मल खा, अपने एग्स खा, हैव योर ऑमलेट खा, या फिर अपना बेसन का चीला खा, सब कुछ खा जो तू खाती है। डिनर में स्टार्ट हैविंग रोटी, एक रोटी। देन आई स्टार्टेड डूइंग दिस, ओके। वन डे ऐसे ही नॉर्मली आई वॉज वॉचिंग रील्स ऑन इंस्टाग्राम। मैंने एक रील देखा एंड शी lost 120 kgs, so she gained 70 or 75, I really don't remember. And I clicked on her profile, I messaged her that, "Hi ma'am, I want a help from you. I want to reduce my weight is stuck, could you please help me?" And she very kindly replied, "Sure darling, I'll definitely help you. You can join my weight loss program, which was a 21-day workout challenge, which was for free, no money." Guys, yes, and the time is here. I'm revealing her name. She is the best. She is my mentor. She actually changed my life. She has given me so much of confidence, all the confidence right now I have, sitting in front of I don't know how many people are even gonna watch this, telling my story with such a confident smiling face. It's because of her. She has changed my life completely, more than, you know what, more than a guide, a teacher or anything. She's like an elder sister to me. So whenever I even talk to her na, I feel like I'm talking to a real sister, a real elder sister. So she is fabulous, like, her name is Chanchal Malhotra. Yes, it's Chanchal ma'am. So I guess उनकी वजह से ना सब कुछ हुआ है, जो भी कुछ है, मैंने जो भी कुछ भी आई हैव स्टार्टेड डूइंग ना, ये कॉन्फिडेंस और ये सब कुछ मेरे अंदर जो है ना, इट्स बिकॉज चंचल मैम, थैंक यू सो मच। आई होप आप मेरी वीडियो देखोगे। थैंक यू सो मच फॉर चेंजिंग माई लाइफ so nicely. I joined her on 26th May. I still remember the date, and it's 28 July. And मुझे जो confidence build किया है ना उन्होंने, that's unbreakable. I am definitely sure कि वो कभी, she says one thing, love yourself. The first thing you have to do is love yourself. So ma'am, thank you so much. These flying kisses are for you. You are the best. आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आज मैं बैठ के अपनी स्टोरी बता रही हूँ, because you are the one who pushed me to do this. You are the one who pushed me to start my different Insta page for the fitness and everything. You are the one who pushed me for so many things, so many things. Okay guys, तो मैंने मैम को 26th of May को join किया था, and I had like tons of questions. Till date I asked her so many questions at a single time. Like some days her only thing is go slow, go steady. ठीक है, मैम एक ही चीज़ बोलती है मुझे कि धीरे चलो, सब कुछ होगा। जितनी जल्दी आप करोगे रिड्यूस, उतनी जल्दी वो आपको गेन हो जाएगा। और गाइस वो कोई डाइट नहीं देती, शी ओनली बिलीव्स इन क्लीन ईटिंग एंड हेल्दी ईटिंग। वो बोलती हैं सब कुछ खाओ, यू कैन हैव एवरीथिंग इन योर डाइट। कैन यू इमेजिन, मैं लंच प्रॉपर, आई कैन हैव लाइक प्रॉपर माई ऑमलेट, पोहा एंड यू नो पराठाज इन माई ब्रेकफास्ट। I am even having my घर का favorite food, like whatever I love. I can finally have rice, you know, जो मेरी पहली में वाली dietitian थी, she told me to stop, like तब मैंने 5 months rice नहीं खाई. Can you imagine? And I eat everything. I love, like, because I love non-veg.
So ma'am is like, you can obviously have, the only thing is to do is portion control. Okay, तो अब हम इस पे चलते हैं। तो मैं मैम का इंस्टा हैंडल नीचे लिंक कर दूंगी गाइज। मैम अभी आ रही हैं 2 अगस्त से अपने वर्कआउट सीजन 3 के साथ। यस, उनका एक और शी इज़ डूइंग सीजन्स एक्सरसाइज, तो वो 21 डेज का वर्कआउट है एंड इट्स पेड। हाँ, वो पेड है, इट्स फॉर 900, बट trust me, if you invest this 900 on yourself, you never gonna regret, never gonna regret. So please go join her, you will never gonna regret joining her. तो मैं उनका इंस्टा हैंडल नीचे दे दूँगी, तो you can go and check her out. Okay, अब हम आते हैं, जो कुछ टिप्स मैं आपको बताऊँगी। ओके, तो सबसे पहले चीज़ है कि धीरे करो पर पूरा करो, कंसिस्टेंट रहो। गो स्लो बट स्टे कंसिस्टेंट। यही चीज़ है जो मुझे मैम ने सिखाई है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस। ठीक है, बहुत सारे टाइम्स आते हैं, मेरे साथ भी होता है, कभी कभी मेरा मन करता है जैसे कुछ बिस्किट्स खाने का या कुछ, या मैं 2-3 बिस्किट खा भी लेती हूँ, बट मैं मैम को बोलती हूँ, मैम कहती कोई बात नहीं, इट्स ओके, कम बैक। आप ब्रेक लेते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है जो हम उसको रीस्टार्ट नहीं करते हैं। अगर मैं ब्रेक भी लेती हूँ ना, इफ आई एम टेकिंग अ 2 days ब्रेक फ्रॉम माई वर्कआउट ऑल्सो ना, 3rd day आई हैव दिस थिंग इन माई माइंड सिंस लाइक मॉर्निंग कि मुझे आज वर्कआउट करना है, मतलब करना है, कुछ भी हो जाए। तो ये है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। टाइम लेगा। आपने अपनी बॉडी को 1 महीने में, 1 दिन में, या 3 महीने में, या 6 महीने में ऐसा ग्रो नहीं किया है। मैंने बचपन से लेके तब तक अब तक मतलब सब वो खाया है। तो मैं ये अगर सोचूँ ना कि मेरा बेली फैट 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा, वो नहीं हो सकता, बिकॉज आई एम 16, आई टुक 15 years टू गेन दिस फैट, सो आई कॉन्ट रिड्यूस इट इन जस्ट 2 months। तो ये है। और you can have your favorite things guys. I eat, like ma'am ने कहा, you can have like burgers. yes, मैम की राइट पे आप बर्गर खा सकते हो। वो क्यों है? I'll tell you, because वो मना नहीं करती, वो पोर्शन कंट्रोल करने के लिए कहती हैं। she says if you're having इतना बड़ा बर्गर, ठीक है, इतना बड़ा बर्गर आपके सामने रखा है, लेकिन आपको सिर्फ इतनी सी भूख है, आपको इतनी भूख है, तो आप इतने बड़े बर्गर को यू कैन टेक अ हाफ, यू कैन कट इट हाफ, टेक इट ऑन योर प्लेट, हैव द हाफ बर्गर, ईट इट स्लोली, एंड आप खुद देखोगे आपको वो हाफ बर्गर लेने का मन ही नहीं करेगा, बिकॉज आपकी जो आपको खाना है ना, वो हाफ ही बर्गर है। ठीक है, अब जैसे मुझे कभी मन करता है ऑब्वियसली, like I wanna have a slice of pizza example, वैसे तो I not have had pizza पता नहीं कब से, मुझे एक slice of pizza खाना है। ठीक है, अब मेरे सामने मेरा फेवरेट पिज़्ज़ा रखा है, मुझे पता है इट्स माई फेवरेट पिज़्ज़ा, तो मैं सोचूंगी यार चल चीट कर रहे हैं तो 3-4 पीस खा लेते हैं। वो नहीं करना, पोर्शन कंट्रोल करना है। जहाँ आप पिज़्ज़ा के 2 pieces खाते हो, हैव 1 piece, यू हैव 1 piece। आपको अपने माइंड को सशेट करना है गाइस, आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी है। अगर आप माइंडफुली खाओगे तो आपको वो 1 piece भी ना 1 full पिज़्ज़ा लाइक 6 slices ऑफ पिज़्ज़ा के बराबर लगेगा, अगर आप उसको माइंडफुली खाओगे तो अपने पोर्शंस को कंट्रोल करो। ठीक है, पोर्शन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अगर जैसे आप लंच में यू आर हैविंग 3 rotis, ट्राई टू हैव 2 rotis, और इफ़ यू आर हैविंग 2 rotis यू कैन हैव 2 or 1.5 roti। अपनी प्रोटीन की, अच्छा सेकेंड टिप, इंक्रीज योर प्रोटीन, ट्राई टू हैव प्रोटीन इन एवरी मील। आप ब्रेकफास्ट ले रहे हो, इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, ट्राई हैविंग मोस्टली हैविंग एग्स, टेक एग्स, you can take paneer sandwich, you can even take poha, it's okay, add a lot of मटर, peas, peanuts, ये सब ऐड करके you can make poha, और you can even have मूंग दाल चिल्ला। ठीक है, धीरे धीरे सारी रेसिपीज़ आने वाली हैं, तो स्टे ट्यून रहो यार, सब्सक्राइब करो। सारी रेसिपी शॉर्ट्स पर डालने वाली हूँ मैं। ऑमलेट की अपने फेवरेट, मेरा क्लासिक ऑमलेट जो मैं बनाती हूँ, ऑमलेट की हो गई, और मूंग दाल चीला will also upload, I'll also upload a paneer sandwich, how I make my paneer sandwich. You can have for lunch, you can have any sabji,
which is you can have paneer ki sabji, you can have soya curry, like soya bean ki sabji, you can have tofu, you can have all the dal, especially you know rajma and chole and black chickpeas, black chana, white chickpeas and rajma because इनका protein अच्छा होता है. You can have dal, any dal. Add greens to your diet. Have a lot of salad. Have a lot of cucumbers, tomatoes with your lunch. Have like अच्छा quantity लो, take a whole some bowl of salads. Greens में you can have spinach, you can add your spinach to dal, you can make dal palak, you can make palak paneer or anything. Just add some greens to your diet, to your regular. Dinner में you can have vegetable khichdi, vegetable dalia or chila or इवन रोल. अच्छा, तो मैंने ना आज ही अपने इंस्टा पे पनीर रोल की बहुत ही यम्मी और हेल्दी होममेड पनीर रोल, लाइक चाइनीज़ पनीर रोल की रेसिपी डाली है अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली है, तो आप वो चेक करो, डू मेक इट. एंड ब्रेकफास्ट के लिए मैंने बहुत अच्छा ऑप्शन अपने इस पे डाल रखा है, यूट्यूब शॉर्ट्स पे, अपने इंस्टा पे मैंने डाल रखा है प्रोटीन रिच पैनकेक्स. एक बार ट्राई करो गाइस प्लीज़, यू विल थैंक मी लेटर. ठीक है, प्रोटीन चॉकलेट, डार्क चॉकलेट प्रोटीन पैनकेक्स, दे आर द बेस्ट. बहुत मिनिमल इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने बना के आपको, मतलब मैंने डाल रखा है उस पर, इंस्टा पे अपने पोस्ट डाल रखी है. तो ये कुछ टिप्स होती है अपना. ग्रीन्स, हैव प्रोटीन, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, एटलीस्ट हैव 2 to 3 liters ऑफ वाटर इन अ डे एंड मूव. तो एक चीज़ बहुत वो है, मैं वर्कआउट करती हूँ दिन में 1 घंटा प्लस I take 10,000 steps daily. I take 10k steps daily. Try to be, you know, active. ठीक है, कुछ भी करो. If you like any of the, अगर आप बाहर कोई स्पोर्ट्स भी खेले, it's okay. Just move. जैसे walk करो. Just do brisk walk for 30 minutes also if you do. It's good. मैं 10k steps I have to complete. तो मैं एक दिन में 10k करती हूँ. Try to take a 20 minute of walk आफ्टर योर लंच. जैसे आपने लंच किया, हाफ एन आवर 40 मिनट्स रुक के 20 मिनट की एक वॉक लो. डिनर के बाद भी, सोने से पहले, डिनर के बाद बीच में काफ़ी गैप आ जाता है, तो टेक 20 मिनट्स ऑफ वॉक. और बी एक्टिव, जैसे कि घर में कुछ काम है, डोरबेल बज रही है, तो गो ओपन द गेट. अगर किसी को जैसे पानी चाहिए आपके घर में, गो गेट इट. कोई भी काम करना है, हेल्प योर मदर, डू समथिंग, जस्ट स्टे एक्टिव. दैट्स माई पॉइंट. तो ये था मेरा वेट लॉस जर्नी गाइस. तो आई होप मैंने इसमें कुछ मिस नहीं किया हो, मैंने सब कुछ बता दिया हो आप लोगों को. तो अब आपने मेरी पुरानी पिक्चर्स तो देख ही ली हैं. अब मैं आपको अपना एक फ़ोटो दिखाती हूँ, द लेफ्ट टू बेली फैट. तो ये है मेरा बेली अभी, राइट नाउ दिस इज़ माई बेली, दिस इज़ द फैट आई वॉन्ट टू रिड्यूस. हाँ, मेरे बेली पे है गाइज इतना फैट एंड आई एम नॉट ashamed ऑफ शोइंग यू गाइज और एनीथिंग. तो that's what right now I'm doing. I'm toning myself, I'm getting more stronger, more confident, more consistent to my journey, all thanks to Chanchal ma'am. Thank you so much ma'am for actually coming in my life. I'm very happy that you are with me right now. So I hope you guys liked it and I hope मैंने कुछ मिस नहीं किया हो. तो ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, तो हम इसको यहीं ख़त्म करेंगे. तो आई थिंक यू विल गाइज लाइक द वीडियो. अच्छा, और एक चीज़, मैं ना एक डाइट प्लान शेयर करूँगी. इट्स नॉट रियली अ डाइट प्लान. आई शेयर यू लाइक what all, I'll share some options and everything. आप क्या खा सकते हो अपने डाइट में, जो मैं खा रही हूँ या मैंने खाया है and which has helped me. तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी. रेसिपीज़ तो आती ही रहती हैं शॉर्ट्स पे और इंस्टाग्राम के स्टोरीज़ पे और सब जगह रेसिपीज़ तो दे ही रही हूँ मैं. रेसिपीज़ का तो कोई इशू नहीं है. तो मैं वो भी एक शेयर कर दूँगी कि लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में. आई शेयर फ्यू ऑप्शन दैट यू कैन एक्चुअली हैव. अभी मैंने काफ़ी सारे तो अपने वीडियो में ही बता दिए, बट आई स्टिल शेयर इट फॉर यू गाइस. तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे एंड आपको मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लगा प्लीज़ बताना. पिक्चर्स देख लेना, सारी अपलोड हो जाएंगी यहाँ साइड में. तो या इस वीडियो के एंड में मैं सारी पिक्चर्स डाल दूँगी, तो वहाँ से आप वहाँ पे मुझे देख के बताना कि आप लोगों को मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लगा. आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो. प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो गाइज. मेरा बर्थडे नवंबर में, मुझे तब तक सब्सक्राइबर्स, आई वांट 150 सब्सक्राइबर्स. आई हैव टू डू अ गिव अवे यार. प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स
डालो बहुत सारे अच्छे अच्छे। तो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। आई होप यू लाइक गाइस लाइक माय वीडियो, बाय बाय।